बट कंफ्यूजन होता है क्योंकि लाइक दिमाग में कुछ रहता है और व्हेन आई एम मेकिंग द वीडियो आई विल फॉरगेट सम ऑफ दोस थिंग्स एंड सिंस आई कांट रीड व्हाइल मेकिंग द वीडियो देन I have to redo the entire thing again. So that is the problem. Topic we are going to cover in this session कि क्या किस तरीके से स्क्रिप्टिंग कैसे होनी चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्टिंग सही होगी तो द पॉइंट इज कि आप बेशक से आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, कीनोट स्पीच दे रहे हो, ऑफिस में कोई सेमिनार वेबिनार कुछ भी है आपका, या फिर ऑफ कोर्स वीडियो क्रिएशन एड्स कुछ भी है, लॉन्ग फॉर्म है चाहे शॉर्ट फॉर्म है, you deliver better, you don't forget anything. Great. So here we'll cover by the end of this session. So what is camera confidence? When you are confident with and comfortable with camera, that is your camera confident. When you are natural, the way you are talking to me and the way I'm talking to you, the same way you can talk to a camera. Right now also you are in front of the camera, right? Right now also you are getting words to express yourself, aren't you? अभी भी आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आप को, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है? Yes, Vikas? Yes. And not only putting your points across and putting your message across, you could also create an impact. When you are comfortable with talking to a machine, because camera is a machine, right? That could be a DSLR or it could be a phone camera. Because once you get natural being on camera, you create better impact. It increases your self-confidence. You pay more attention to your personality development also, because then you start understanding how you look, how are your surroundings, you become more awareness. And all these things, this happiness or ये yoga, mindfulness, if you understand, ये मिजरी, दुखी राम से सुखी राम की जर्नी है क्या चीज? ये अवेयरनेस की जर्नी है. Once you become more aware about yourself, about your surroundings, about the things that's happening around, you become from Dukhi Ram to Sukhi Ram, and that's the same way when you yourself become Sukhi Ram. What do you think? You cannot lead others to the same journey. दूसरों को भी तो आप सुखी राम बना ही सकते हो ना, जब खुद ज्यादा अवेयर हो गए, हाँ कि नहीं? That's true. तो लेकिन अब होगे कैसे? How to be more confident? How to be comfortable with talking to a machine? See, the kind of fears people generally have. One, the number one problem or the fear people have is, if I forget anything, what would happen? So forgetfulness due to nervousness, even if they don't register it is nervousness, or nervousness is not very much a key ingredient of their fear, or it is not prominent, but they forget or they start stammering, fumbling, and sometimes very conscious that how I may be looking, मैं कैसी लग रही होंगी या कैसा लग रहा होगा, मेरे एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, कहीं मैं साउच तो नहीं कर रहा. Especially if people in your family or in your surroundings, in your social circle, they have been pointing, तेरी तो नाक टेढ़ी है, तेरे तो बाल ऐसे हैं, तू तो ऐसा दिखता है, तू तो वैसा दिखती है. If you had any of those filters, in those cases, the fears are bigger. Yes or no? Do you have, look, if the first one, forgetfulness, not exactly forgetfulness, but the words do not come to your mouth, or you don't understand what words would be the right or appropriate in particular situations, right? So this is the one problem. And then while being nervous, what people think, if I forget anything, भूल जाऊंगा, like how I look, my close-up looks strange. मेरा वैसे तो मैं अच्छा हूं, मैं कितने लोगों के सामने बात कर सकता हूँ. जनरली यू ऑल्सो फील दैट कि आई टॉक 1-to-1, बहुत अच्छे से बात कर लेता हूँ. 1-to-many, ऑफिस में भी बात करनी है, फैमिली में भी बात करनी है, लोगों को सिखाना है तो मैं सिखा भी सकता हूँ, बट कैमरे से कैसे बात करनी है, कैमरे को कैसे बताना है, हाउ टू डिलीवर माई मैसेज इफेक्टिवली. सो व्हाट टू डू, व्हाट इज द एग्जैक्ट, व्हाट इज द
रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. कई बार होता है ना, बुखार हो रहा होता है और कहा जाता है क्रोसिन ले लो, बुखार ठीक हो जाता है. लेकिन बुखार भी या फीवर भी प्रॉब्लम नहीं होता. प्रॉब्लम कई बार उससे डीप रूटेड होता है. इट कुड बी सम अंडरलाइंग डिजीज, इट कुड बी अंडरलाइंग पेन और सम काइंड ऑफ सेप्टिक और समथिंग. यस और नो? यस. Same way, this camera confidence or forgetfulness or these things could be due to some innate fears or innate beliefs or problems that you may be having. So what are your camera fears? Here we wait for a minute and you just write down what are exact your camera fears. ऐसा नहीं कि सारे के सारे इश्यूज सबके साथ होंगे, किसी के साथ कम, किसी के डिपेंडिंग अपॉन व्हाट हैज बीन योर जर्नी एंड वेयर यू आर एग्जैक्टली. सम पीपल फील मोर बॉडी कॉन्शियस कि पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरा क्लोजअप ठीक नहीं है, ये नहीं. एंड सम पीपल आर मोर लाइक दे हैव सो मच टू डिलीवर, दे डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, वेयर टू एंड. कि इतना सारा है, लगता है एक ही बार में पूरा ज्ञान बांट दो. होता है ना? तो दैट्स व्हाई I gave this exercise that take a few seconds, few minutes and write down your camera fears. Okay, it's part of your journey. So later on, when you know, when you are aware where you are, you are better prepared to reach where you want to be. Right? So it's about the awareness. And see, the fear or the nervousness people fear, that is not exactly camera, because camera is only a machine. And are you afraid of a machine? That way there are so many machines around you. Of course you had been afraid of everything. कैमरा उससे कुछ निकल के मॉन्स्टर आपको खाएगा नहीं. इनफैक्ट वो तो सबसे एक जगह रख दिया, वो उसमें तो कुछ भी नहीं होना है, हरकत कुछ भी नहीं होनी है. नहीं, उस इसलिए कुछ कॉन्शियसनेस वाली तो कोई बात ही नहीं है उसमें कि आप कॉन्शियस हो जाओ कि पता नहीं शिवरिंग होने लगी कैमरा देख के कि ऐसे लगता है मुंह में जबान ही नहीं है, शब्द ही सारे भूल गए, दिमाग खाली हो गया, कुछ जितना आता था सब पता ही नहीं कि क्या बोले क्या नहीं बोले. मेन जो फियर्स है या मेन जो नर्वसनेस है, कॉन्शियसनेस होता है कि कैमरे के सामने क्या बोले. द रियल फियर इज नॉट द कैमरा, बट पीपल विल जज अस, mock us, compare us, or make assumptions by looking at us in our videos. That thing stops you. Yes or no? These assumptions कि लोग आपको जज कर लेंगे या मोक कर लेंगे या आपका मजाक उड़ाएंगे, स्पेशली लव्ड वंस, फैमिली वाले, फ्रेंड्स कंपेयर करेंगे या आपके बारे में पता नहीं क्या बोलेंगे, ऑफिस वाले ही पता नहीं क्या बोलेंगे, तो आपको पता नहीं है. Still those unknown things make you afraid. So the fear is not with camera. Everything that starts with the mind, with our inside, same way this fear is with self. The fear is with low self-esteem. It could be at different levels or different degrees, or it could be maybe you're too much of content or too much of knowledge that is getting mixed up. If you're facing any challenge with camera confidence or facing the camera or making videos, is it anything inside you that needs expression? ऐसा होता है कि जब हम अंदर से खुश होते हैं तो कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल होती है, वीडियो भी बनाना होता है तो हम ऐसे. Yes, Vasant, you have any question? Yes, Dimple ma'am. Yes, so I think this is like I get a feeling this much I'm going public. Can I handle that much of publicity? अगर इसको अगर सरल भाषा में बोले तो you can say कि lack of confidence to handle too many people. Like अगर आप thousands of people के if you are in front of thousands of people, how much confident you are to handle that position? वो level of confidence. जैसे our Gurudev, he does, right? He handles 300 people or 1,000 people at one go. So I think you can say in simple terms, the lack of confidence, lack of public confidence, you can say, or that is a thought actually which will come if I make too much of videos. So this could be one thing.
Second, of course, you said like सारा का सारा ज्ञान है एक साथ ही आप देना चाहते हैं, and that also is one problem, that art of being smarter with the content and the videos, like just giving 2 minutes video or 1 minute video, which is very apt for the people, audience. So I think these two are there. To start, begin with yourself. When you learn how to handle yourself first, right, Vasant, then you are able to handle others also. You asked about the publicity. क्या मैं इतनी सारी publicity handle कर सकता हूँ, या इतना सारा attention एकदम से होगा तो क्या मैं handle कर सकता हूँ? Yes, the way it happened with Kapil Sharma show, एकदम से इतनी publicity आ गई. यो हनी सिंह की जर्नी आप देखो, इतनी publicity एकदम से starting में आ गई. Generally people, या दीपिका पादुकोण की आप देखो, प्रियंका चोपड़ा ने एक बार शेयर किया था, many big wigs celebrities share their journeys कि एकदम से जब attention आता है तो people get into depression and they feel कि am I faking myself, am I really worth all this attention? Yes or no? So this is the inner part of your question. So here, while we are starting our YouTube journey, one thing is कि yes, आपकी हो सकता है कि आपकी पहली ही वीडियो या इनिशियल ही वीडियो इतनी वायरल हो जाए और people receive your message because you are doing really good work. So people receive your message so well that you become such a big hit among them. So you get so much publicity or you grab your video goes viral. ठीक है, उस केस में क्या करना है? उस केस में ये करना है कि take it easy, be as normal, as grounded as you are. You don't have to take it to your head. यदि आप realistic हो, aware हो कि okay, जैसे सुख दुख के लिए कहते हैं कि सुख दुख आनी जानी चीज है, publicity भी एक वीडियो से आई, दूसरी वीडियो पे फिर वो होता है ना, ये किसी की शाहरुख खान की फिल्म एक हिट हो गई तो दूसरी फ्लॉप हो गई तो वो जाके दुखी नहीं हो जाएगा, हो सकता है इनिशियली होता हो, बट वो दुखी हो जाएगा तो वो तीसरी फिल्म नहीं कर पाएगा. सेम वे, तो हमें भी अपने आप को, वी आर द क्रिएटर्स, हम किसी भी लेवल पर क्रिएट कर रहे हैं तो हमें भी देखना है कि इट इज अ जर्नी. यदि आपका एक दिन ऑफिस में बहुत ही प्रोडक्टिव गया है, दूसरा दिन बहुत ही घटिया गया है, तो ऐसा नहीं होता आप तीसरे दिन छुट्टी लेके बैठ जाते हो कि जी दूसरा दिन घटिया हो गया है तो तीसरे दिन में सैडनेस या डिप्रेशन या स्ट्रेस या इस वाले मोड में हूं तो अब तो मैं कोप भवन में बैठ जाऊंगा, नाउ आई कैन नॉट वर्क टुडे बिकॉज आई कैन नॉट हैंडल दैट. तो आपको पहला दिन बहुत अच्छा गया, दैट ऑल्सो, वो कहते हैं ना कि आपको दुख और सुख यानी अच्छा बुरा जीवन में जो परिस्थिति है, तो अगर आपका बैलेंस है, यहां से स्टार्ट होते हैं, बैलेंस है, दैट्स व्हाई योगा जो आशीष जी कर रहे हैं अपना 30 दिन का, हियर इट कम्स इनटू पिक्चर कि माइंड जब आप योग में हो, बैलेंस में हो, तो आप पब्लिसिटी हो चाहे आपके बारे में लोग गलत कमेंट कर रहे हो, गलत बोल रहे हो, आप दोनों सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाते हो. ठीक है, तो ये तो एक पार्ट हो गया. डज इट मेक सेंस? सेकेंड पार्ट ये हो गया कि हम मान लेते हैं कि चलो हम हजारों लाखों में से कोई ऐसी, मे बी लक डजंट प्ले अ पार्ट इन आवर केस, तो हो सकता है कि हमारी शुरू की वीडियो इतनी वायरल नहीं होगी और we may or may not get that many subscribers, views, likes, watch time and all. ठीक है, उस केस में भी आप बैलेंस में तो हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी. उसका फायदा क्या है कि जब आप इनिशियली आपको कोई इतनी हाई पब्लिसिटी नहीं मिल रही तो वो टाइम आप अपने रूट्स को, अपने चैनल को प्रेजेंटेबल बनाने में, अपने वीडियोस को इम्प्रूव करने में, कंटेंट को सेग्रीगेट करने में, इन सारे जो बेसिक जो सेटअप है उसको क्रिएट करने में आप टाइम लगा देते हो. तो जब पब्लिसिटी आती भी है तो आपके रूट्स, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, आप 1 by 1 स्टेप्स को सीखते जाते हो और फिर उसको इजीली हैंडल कर लेते हो. राइट? तो either way you are in perfect balance. Win-win situation. Yes, and I'm happy you asked this question. It happens. We are sometimes not prepared for success.
most of the people, most of us are prepared from the childhood कि हाँ पैसा कमाना मुश्किल है, नौकरी मुश्किल है, जॉब मुश्किल है, फैमिली लाइफ हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स लड़ रहे हैं या पड़ोसी लड़ रहे हैं तो हम सोचते हैं फैमिली लाइफ भी मुश्किल है, तो यानी कि जिंदगी अपने आप में मुश्किल है, तो यदि कुछ अच्छा होता है तो हम सोचते हैं ये अच्छा क्यों हो रहा है, तो हम उसको और मुश्किल बना लेते हैं अपने दिमाग के अंदर और उसके अंदर कुछ 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 डाल करके, ठीक है। तो here the fears are not from outside, पब्लिसिटी भी आएगी तो पब्लिसिटी बाहर वालों का रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है, हमने जो कंटेंट शेयर किया, तो उस फियर को हमको जब खुद को मैनेज कर लेंगे, यदि खुद को मैनेज कर लिया तो चाहे मुझे अब कैमरे पे मुझे एक से बात करनी है या गुरुदेव को एक से बात करनी है या उनको 10,000 से करनी है या 1,00,000 से बात करनी है, it hardly makes a difference because he is talking to the camera. Why I give so much importance to camera confidence and why this session? Because I know if you increase the power of camera confidence, your videos will be natural. You'll make more videos, your productivity will increase, and the depth in your video content will also increase. Because your attention will not be on camera confidence or stammery or forgetting anything or too much of content. Your attention will be on idea and content. That's why I'll make sure you get friendly with camera. So for that, let's remember a few things. See, first thing, comparison is the biggest killer. No two people, we all look same, we all are part of the universe, but we have different upbringings, beliefs, and environments. Everything may be totally different. The footprints are totally different. So comparison is a natural confidence killer. You watch, and the reason behind that, why comparison, even if we tell ourselves we won't compare, we think we are not comparing, but still it comes into picture because you watch perfect news presenters, perfect anchors, top YouTubers who speak very smartly and effectively, and you get influenced with their power of presentation. Yes or no? Yes. But we forget one thing, that they also had a journey. They were not popped out of the egg with all their presentation, good skills and everything. They learned everything. Okay. But you see perfection only. Like you see, okay, they are so well presented and I'm not like them. That's why I cannot make videos like them or I cannot compete with them. And that's why you feel my presentation is not so good and you get nervousness and fear as a result of that. बेशक हम एडमिट करें या ना करें, लेकिन हम चाहते हुए भी उसको देख के अपने आप को कुछ कमतर मान लेते हैं, अपने आप को जो हम हैं उस नजरिए से देख ही नहीं पाते, हम तो किसी और ही लेंस से देखते हैं। हम तो ये देखते नहीं कि हम अपनी स्ट्रगल्स को तो जानते हैं, इसलिए अपनी स्ट्रगल्स को हम सोच रहे हैं कि हाँ हमारे पास ये स्ट्रगल है। हमें ये नहीं पता कि जो सामने वीडियो बना रहा है हो सकता है कि उसके फैमिली में इतनी भयानक प्रॉब्लम है कि फिर भी वो स्माइल करके बना रहा है। आपने मेरा नाम जोकर किसी ने मूवी देखी है? राज कपूर जी की जो मूवी है, यस देखिए, तो उसके अंदर उनकी मदर की डेथ हो जाती है मूवी के अंदर, एंड ही वाज अ जोकर इन द सर्कस। ही गोज देयर एंड ही मेक्स पीपल लाफ। जब आप शो बिजनेस में होते हो, व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग, यू आर अ क्रिएटर, यू कैन नॉट अफोर्ड टू कंपेयर कि आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हो कि हाँ उसका अच्छा है, उसका अच्छा है। आपको अपना बस बेस्ट देना होता है। यस और नो? डज इट मेक सेंस? So number one rule to get good at everything is stop comparing at all. और आप you become part of the universe. आप सिर्फ मैं अपने लिए नहीं जीते, और जब आप सबके लिए जीना शुरू करते हो तो वो कंपैरिजन की बात ही नहीं है, क्योंकि मैं भी हूं, वो भी है, सब एक ही है। ठीक है, तो वो जो लाइन है वो खत्म हो जाती है। अब सेकेंड बात जो आती है वो है स्क्रिप्टिंग की, जो आपने क्वेश्चन छेड़ा था कि इतना सारा होता है, देयर सो मच कंटेंट एंड वी वांट टू गिव ऑल द कंटेंट टू पीपल, एंड
It takes a lot of time. So what happens? Generally, people are worried what they should do to avoid forgetting or fumbling while shooting a video. Should they write the whole script, write pointers, or go natural? Or people also fear like when they have these three ways of in the industry. So one is word to word. Content is word to word. Initially, what I used to do, I had started with the writing posts on my blog or my website, stitchingmall.com. So I used to have big posts and people used to ask similar question. I used to sometimes I used to read those posts also. And that is one way. उसका नुकसान ये है कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि later on when you are invited somewhere or you have to go live or you have to talk about your topic, you cannot talk naturally. So that is one way. So of course you are not going that way. That's great. Pointers वाला system, विकास, pointers आप अपने subject के हिसाब से कुछ prepare करते हो? Any framework do you have any framework or pointers are just like topic? नहीं, so what I do is problem कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, देन उसका मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सॉल्यूशन दे रहा हूँ, एंड देन लास्ट में कॉल टू एक्शन. ग्रेट, दैट इज वन ऑफ द गुड फ्रेमवर्क कि आप पॉइंटर्स बना लो. Basically, see, you are talking about the topic that you are already comfortable with. You have experienced that thing, that particular problem, and आपकी खुद की स्टोरी है उससे रिलेटेड. आपको कस्टमर के बारे में बेशक 100% ना हो पता हो, 50% तो पता है ही, ठीक है. तो इन दैट केस जो भी आपका टॉपिक है, इफ यू मेक पॉइंटर्स, इट सर्व्स all the big orators or presenters or anchors, they also make pointers और उसके अंदर pointers के हिसाब से right now also these are the pointers. I'm just looking at them. I don't have full on scripts. just उनको pointers को देख के कि अच्छा मुझे अभी content तो बोलना है, pointer पे बोलना है, तो आप कि हाँ आप 1 2 3 4 5 तो आपके दिमाग में तो ऑलरेडी है ही आपका जो कंटेंट होता है, जिस उसको प्रोसेस ही तो करना है. पॉइंटर को देखा तो दिमाग उसको प्रोसेस करता है और वो हैबिट फॉर्म होने लगती है. एंड द थर्ड वन इज नेचुरल. नेचुरल इज ऑल्सो अ गुड वे. वसंत, व्हाट हैपेंस, हर चीज के देखो कुछ प्लस और कुछ माइनस होते हैं. और पॉइंटर्स में भी जैसे कि प्लस तो ये हो गया कि आप जिस पॉइंट को देखते हो आपको दिमाग में पूरा प्रोसेस होकर के आ जाता है. यू कैन ऐड योर स्टोरी एंड कोड्स और समथिंग इम्प्रॉम्प्टू आप चल सकते हो एंड यू कैन डिलीवर. नुकसान ये होता है कि आपको यदि अपने टॉपिक के ऊपर ग्रास्प नहीं है, उसके यू डोंट होल्ड गुड स्टैंड ऑन दैट अपना पॉइंट, तो फिर आपको पॉइंटर्स के बाद पूरा टॉपिक के ऊपर बोलने में दिक्कत आ सकती है. तो आपको नॉलेज होना जरूरी है. एंड आई नो आप लोग को सभी को अपने टॉपिक के नीश के बारे में पता है, तो ऑफ कोर्स यू कैन गो पॉइंटर्स वे. नेचुरल वे जो होता है 1 मिनट वीडियोस जो होते हैं या छोटे वीडियोस होते हैं, उसके अंदर नेचुरल चल सकते हो. और कई बार क्या होता है व्हेन यू आर मेकिंग वीडियोस और द कंटेंट सो मेनी फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम, देन देयर कम्स अ पॉइंट की सेम क्वेश्चन पॉपअप होता है आपके पास, सेम कमेंट्स आता है एंड यू गो नेचुरल. जनरली लाइव वीडियोस के अंदर सेम क्वेश्चंस क्वेरीज कम एंड यू गो नेचुरल, यू आंसर, राइट. अभी आप में से किसी को डर लगता है लाइव जाने में, कहीं लाइव गए और किसी ने कुछ पूछ लिया और हमें वो क्वेश्चन नहीं आया तो क्या करेंगे? Does any of you feel that way? Sometimes that happens. Yeah. What if there is a very tricky question और समझ में नहीं आया तो फिर क्या होगा? अभी तक किसी ने आज तक कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन वो क्लियर रहता है दिमाग में, because it's one thing to be in front of real people, but वो कैमरा पे थोड़ा ज्यादा डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा. Yes. And Vasant, Vikas, you had any experience with that? कोई फियर की लाइव गए और किसी ने कुछ पूछ लिया तो क्या करेंगे? नहीं मैडम, मैं तो एक थोड़ा इग्नोरेंट क्वेश्चन पूछूंगा. I mean like I have been not very active on the social media, तो मैं लाइव 2-4 और गया हूँ, बट ये लाइव का मतलब एक्चुअली क्या होता है? लाइव का I'm asking that question. I am live with you. Yeah. So मैं लाइव गया हूँ, काफी बार गया हूँ.
एंड आई डोंट इवन गेट एनी फियर आल्सो। ठीक है, जो आन दो आ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन रियली आई रियली कुडंट अंडरस्टैंड, बिकॉज लाइव मैं गया तो कोई लाइव में कोई था ही नहीं वहां पे। कपल ऑफ टाइम्स आई गॉन टू फेसबुक लाइव एंड नथिंग रियली, नोबडी वाज देयर। सो व्हाट आई एम डूइंग देयर? आई एम टॉकिंग, दैट्स इट। सो it really, it didn't click me. What, who will come? Should I kind of send a notification that I'm going live on this time and then I should go live? I don't know. Because people are not connected with you right now. They don't know exactly what Vasant Warrior is doing. They don't have awareness. That's why when you went live, nobody turned up. And that's why the plus point was that you got the confidence that okay, I can go live and there is no fear in going live. Okay, very first day यदि बहुत सारे लोग आ जाते और वो कुछ आपसे ऐसे सवाल पूछ लेते जो आपको maybe you may or may not be prepared for them, and then you would have felt कि अब क्या करूं, शायद live मेरे लिए है ही नहीं, so I will not go live next time. No, Okay, I don't so think that way it is good, but yes, notification भेजना, awareness फैलाना, that could be one of the strategies. तो ये आपको क्लियर है कि ये 3 तरीके हैं जिनसे आप जा सकते हो। नेचुरल तरीका जब आप कमांड हो जाती है। अच्छा, जो आपका एक और लाइव से ही रिलेटेड बोल देती हूँ, लाइव के अंदर ये होता है स्पेशली जब आप कॉन्शियस हो जाते हो। जब आप कॉन्शियस नहीं हो, द वे वसंत वाज देयर, जब आप कॉन्शियस नहीं हो कि कोई नहीं है या बहुत कम लोग हैं, तो आप कॉन्शियस नहीं होते कि अच्छा, या कोई भी नहीं है, तब तो बिल्कुल ही कॉन्शियस नहीं हो। ये हो सकता है कि कोई है नहीं तो ठीक है, जो मर्जी बोला एंड ऑल। एक कॉन्शियसनेस हो सकती है कि कोई है क्यों नहीं, कोई आया क्यों नहीं। लोग तो कहते हैं लाइव में लोग पूछते हैं, सवाल पूछेंगे, और आप अनप्रिपेयर्ड चले जाते हो लाइव वीडियो के लिए कि लोग सवाल पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन कोई है ही नहीं तो जवाब दोगे किसका, राइट? तो एक चीज, इवन इफ यू गो लाइव, यू गेट योर स्क्रिप्ट रेडी, आपका फ्रेमवर्क रेडी होना चाहिए, आपका टॉपिक रेडी होना चाहिए। तो बेशक से कोई नहीं भी आए तो भी you have a topic to deliver, you have some message to deliver. There you also have some problem, some solution, some call to action. ठीक है, लाइव के अंदर भी। सेकेंडली, अगर कोई आपसे, अव्वल तो वहां पे हाय, हेलो, थैंक यू, और 2-4 लोगों के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके रिलेटेड टॉपिक से ही होंगे, आप उनको जवाब देंगे बाय चांस। क्योंकि I have also done a lot many lives, but I also had my fears, so I am telling with experience. वहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपको नहीं पता या जिनके बारे में आपको श्योर नहीं है। तो इन दैट वे you can say okay, you can check my website, or you just write your comment in the below comment section. I'll give you the detailed answer later on. या फिर इस बारे में, क्योंकि इस सवाल का जवाब मैंने कहीं और दिया हुआ है किसी और वीडियो में, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा। और आप ये भी कह सकते हो कि आप इस टॉपिक के बारे में मैंने फलां जगह बोला हुआ है, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हो। या फिर आप नीचे कमेंट, इजी है, यदि कहीं आपने नहीं बोला तो आप ये कह सकते हो कि आप नीचे कमेंट में डिटेल में आप अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। अगर आपका ऑलरेडी 1-to-1 सेशन चल रहा है, कोई जो प्रॉब्लम, व्हाट दे कॉल प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, जो HTC का होता है 1-to-1, या फिर आपने कोई आपका जो होम पेज है, आपका वेबिनार वगैरह कुछ चल रहा है, सो यू कैन ऑल्सो लीड सच पीपल टू देयर। तो लाइव के दौरान भी आपके पास लिंक आपके रेडी होने चाहिए, आपका होम पेज का, आपका जो 1-to-1 वाला है, या फिर आपका गूगल का जो शीट है, गूगल में जहां पे आप लीड कैप्चर कर रहे हो। तो इस तरीके की कुछ शीट्स या कुछ वीडियोस जो कि पॉपुलर हैं या पॉपुलर क्वेश्चंस को आंसर करती है, तो इन लिंक्स को आप हैंडी रखो, नोटपैड पर रख लो, या फिर आपने अपना कोई SOP बना रखा है कि ओके मेरा ये प्रोग्राम चल रहा है, या मैं ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मैं ये फॉलो करता हूँ, तो उसमें आपने अपने लिंक लाइव के दौरान, अगर मुझसे कोई ये पूछेगा तो मैं ये बोल सकता हूँ, ये पूछेगा ये बोल सकता हूँ। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको उसको रेफर करना पड़े, लेटर ऑन लिंक शेयरिंग के लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए, उसके बाद तो आदत पड़ जाएगी, तो यू डोंट नीड मच। ठीक है, अगर फोन से आप वीडियो लाइव कर रहे हो, आपके पास कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है, देन यू कैन रीडायरेक्ट द पीपल टू directly go to your website or your
comment section of the video. Is it clear? एक चीज जो कैमरा कॉन्फिडेंस के अंदर प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि कैमरा से बोल बोल के बड़ी बोरियत सी होने लग जाती है. वसंत, when you were doing your live session and nobody appeared, nobody came, did you feel थोड़ी देर में कि यार मैं ही बोले जा रहा हूँ, कुछ कोई है नहीं, कुछ नहीं है, तो छोड़ो, बंद करो? Yeah, true. I mean, that is true, and that is even applicable to sometimes webinar also. Okay, and Ashish, you are doing live nowadays. Do you also feel this way? लोग तो ज्वाइन कर नहीं रहे. हाँ, वो डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है कि अभी मैं क्यों कर रहा हूँ अगर कोई है ही नहीं तो. क्या होता है कि जब हम सामने सामने हैं देन वी कैन असेस कि अच्छा एक दो है, तो उससे भी मोरल बूस्ट होता है कि एक दो भी हमें एक पर्सनल सा फील, ह्यूमन टच फील होता है ना. लेकिन कैमरे में यदि हम 5, 7, 10 भी होंगे तो भी ऐसे लगेगा जैसे कि कोई है नहीं, खाली कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है. क्योंकि कैमरा जो है, आप हो अपने स्पेस में और कैमरा है आपके सामने. इवन इफ आप लाइव हो तो भी यू आर टॉकिंग टू अ मशीन ओनली, और मशीन आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, कोई रिएक्शन नहीं देती, हंसती नहीं है, ये नहीं बोलती कि आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो. और स्पेशली लाइव वीडियो में हो तभी भी कोई नहीं है, कोई एक्सप्रेशन कुछ आ ही नहीं रहा वहां से सामने से. तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने हाव भाव को, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन, पिच को, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग. यस और नो? एंड व्हेन यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, सो इट गेट्स मोनोटोनस, यू फील बोर एंड you go low in energy. कि हम लाइव कर रहे हैं, कोई आता नहीं है, तो मैं फालतू में बोल रहा हूँ क्या? तो here विकास answered this appropriately कि take it as कि ठीक है, कोई नहीं भी आया तो YouTube का फायदा ये है कि आपने आज से 10 साल पहले भी, 2008 में भी वीडियो बनाई होगी, ये कभी भी बनाई होगी, तो आज भी उसके व्यूज वो कैप्चर करेगा, उस पे मोनेटाइजेशन होगा, इट विल मेक एन इम्पैक्ट. एंड समटाइम्स मेनी केसेस ऐसा होता है कि आपने सालों पहले कोई वीडियो बनाई थी, वो वीडियो कभी भी किसी ने नहीं देखी, लेकिन सही समय आया, मोदी जी के बारे में लोगों ने सर्च नहीं किया 2014 से पहले के टाइम में. जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई, उनकी जाने कहाँ की वीडियोस भी आकर के लोगों ने वायरल कर दी. नॉट ओनली दिस इज वन एग्जाम्पल, बट दिस हैपेंड आपके टॉपिक के बारे में भी. आपने कभी कुछ, आज आप लाइव कर रहे हो, कोई नहीं देख रहा, बट व्हेन यू बिकम बेटर एट इट, यू बिकम फेमस, उस टाइम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा आपकी अटेंशन ग्रैब करना, या आप उतना एक्सेसिबल नहीं हो जाओगे. यस, दैट हैपेंस कि उतना एक्सेसिबल नहीं हो जाओगे, तब लोग आपकी पहले की वीडियोस जाके देखेंगे कि हाँ, व्हाट वाज आशीष कुमार, व्हाट ही वाज सेइंग, ही टॉक सो मच सेंस, ही इज गिविंग सो मच वैल्यू. एंड दैट टाइम थिंक यही लाइव वीडियोस मे बी गैदरिंग मोर व्यूज एंड मोर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, राइट? तो आप जो भी, इवन इफ कोई भी नहीं आ रहा, अभी कोई भी नहीं, आप अकेले बोल रहे, तो एटलीस्ट आपका कंटेंट तो बन ही रहे. और लाइव वीडियो का सबसे अच्छा फायदा क्या होता है कि लोगों को एक तो नेचुरल कैंडिड फीलिंग आती है, तो वो सोचते हैं कि हाँ, इसमें कुछ एडिटेड नहीं है, तो वो कनेक्ट अच्छे से करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं. दूसरी बात यह है कि आपको कुछ एडिट नहीं करना पड़ता, आपके सिर से ये बोझ हट जाता है. हाँ कि नहीं? कुछ एडिट नहीं करना है, जस्ट आप तो एक्सरसाइज करते ही हो, आप तो योगा करते ही हो, आपने तो उसी को कैमरा रख के आपने जस्ट बोल दिया, बेनिफिट बता दिए, बोल दिया, कॉल टू एक्शन कर दिया, शेयर कर दिया, आपका योगा एवरीडे हो रहा है और कंटेंट भी अपने आप बन रहा है ना. तो नो हैसल, चैनल अपने आप ग्रो हो रहे हैं, लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे जब वो देखेंगे कि यू आर सो कंसिस्टेंट एंड रेगुलर विद योर वर्क, राइट? सो मेन थिंग व्हाई people feel afraid with camera, that response नहीं आता, और response नहीं आता इसीलिए you don't know what your viewers are feeling about your content and the energy gets low, right? So do you want to know what is the solution to that, or you have your own solutions? नहीं, I want a solution. तो इसका एक easy सा हैक बता दूं. इसका एक इजी सा हैक ये है कि आपका अपने कस्टमर अवतार, अब आप रिलेट करोगे कि जो हो सकता है पहला वाला जो सेशन
जो मैंने आपको फर्स्ट डे की कस्टमर नीश और अवतार और लाइफ गाइड अपडेट करने को बोला, वो यहाँ पर आपको हर स्टेप पर कैसे कैसे रिलेवेंट रहेगा, कैसे कैसे वैल्यू देगा आपकी लाइफ गाइड और आपका कस्टमर अवतार, आपकी नीश। यहाँ पर आप उस कस्टमर अवतार को इमेजिन करो, इमेजिन योर कस्टमर अवतार इज वॉचिंग यू थ्रू दिस कैमरा. You want to help a woman get back to job. Suppose you are talking to, or suppose you help your wife get back to job. Now you are talking to your wife. The very first day when she said कि क्या मैं इतने साल से काम नहीं कर पा रही हूँ, तुम्हारी वजह से ये XYZ this, and you said okay you want to work, okay, see I'm adding some drama but you can cut that. You can say okay, इतना घबराने की क्या जरूरत है, जॉब ही करनी है ना, कर लो, that's not a big deal. मुझे अब कौन जॉब देगा, like it's 40 years and all, this is no way, I wasted my time on you with your family and all. So now you can say okay I help you with it, and maybe you can take your wife along if she can spare a few minutes and add some family touch to that and create that drama in front of the camera and maybe present that. Is it helpful? Does it give a fresh insight? So just imagine you are just talking to your customer avatar. You are helping your younger self or somebody, maybe you had some friend or a family member who had back pain. उसने मुझे आपको बोला कि मुझे बैक पेन हो रहा है, and you are suggesting him, बैक पेन हो रहा है, what's the big deal? Do this, ताड़ासन कर लो, stretching कर लो, ये करो, वो करो, and it will be gone. And the fellow is saying, नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं योगा नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है योगा वोगा, मैं रामदेव जी का भक्त हूँ एंड XYZ कुछ भी, मेरे को पता है योगा क्या होता है. And that way you can imagine that relative, that friend, that your wife, and you can say कि वो exactly किस feeling के साथ बोलती है या बोलता है, और उसके बाद नहीं तुम्हारा ज्ञान तुम अपने पास रखो and all, and then here you can give जो आप actual अपनी wife को या अपने friend को नहीं बता सकते, here you give the real perspective कि see, listen here, this is the belief, here you give a shocker कि even at age 40 it is possible for women to get a decent good HR job. It is a myth that during midlife crisis women cannot, even if you spend your life raising kids, you can still go back to job, that is easy. Even if you are having back pain for many years, still it is easy to get rid of that using some these muscle strengthening exercise. Or you can say even if you are having everything in life, still you are feeling a void in your life, so maybe you can talk to your younger self. Do you have anyone around you you can imagine inside that camera, and you can highlight the problem, highlight the benefits, give those remedy or how to solve your problems, and then give call to action to that loved one inside the camera? Is it possible? Is it doable? Yes or no? No, definitely. And Dimple, it would really help if you could point to any video where you have done this. तो हम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से visualize कर पाएंगे. अगर ऐसा In कोई most video of my videos, yes, in most of my videos, what I do, कैमरे में अभी भी कोई कमेंट आता है तो मैं ये assume करती हूँ कि वो एक single person asking me through the camera, and I'm answering that one person only. So you may also imagine some known face, your friend, and that way you can create a two-way habit to bring life to your video content. Okay, इसमें एक काम और कर सकते हो आप, एक शीट के ऊपर ना 2 आंखें, नाक, मुंह बना करके आप अपने कैमरे के सामने या साथ में रख सकते हो.
और धीरे धीरे फिर वो हैबिट बन जाएगी कि आप इमेजिन करने लगोगे। स्टार्टिंग के अंदर यू कैन इमेजिन कि ओके दिस पर्सन, ये मेरा पर्सोना है, ये मेरा कस्टमर अवतार है। आप उसको कोई नाम दे सकते हो, मार्केटिंग में ऐसा करते हैं कि आप अपने कस्टमर अवतार को कोई नाम दे देते हो और आप सोचते हो कि हाँ दिस राहुल इज माई कस्टमर अवतार, he has this problem, I'm offering this solution to him. या स्मिता, she has this problem, I'm giving this solution to her. ठीक है, तो एक तो आप शीट लगा सकते हो, नाक मुंह बना के उसका स्माइली बना के कुछ समथिंग, उससे बात करो एज इफ शी इज गिविंग यू रिस्पॉन्स एंड ऑल। और दूसरा, आप कैमरे में ही इमेजिन करो कि आपका जो कस्टमर है, जो ऑडियंस है आपका, वो कैमरे में है और आप उससे बात कर रहे हो। I give you a little work to do. So to gain camera confidence and bring life to your videos, bring that effectiveness to your videos, this is one sheet. It is, I call it my and why sheet. This is my favorite. So write down at least 3 of your favorite speakers and presentables. They could be on TV, YouTube, anywhere. You can write them here if you remember or later. And secondly, why you like them, their qualities, their reason, or any reasons. What are the reasons? I share my sheet. Would you like to see my sheet? Because I also created one my and why sheet. When I was not, I used to be very conscious, and thankfully now I'm much better. That time I was really, really bad. These were my challenges. Some of the challenges you may have some other challenges that also you can let me know. So initially 2020, it means 2014 से 2020 तक तो मैं वीडियोस बना ही चुकी थी, ऑफ एंड ऑन, रेगुलर नहीं थी मैं, but off and on I had created videos. So background unattractiveness, here I'm a little conscious. I don't say I'm expert right now, but I paid some attention to understand कि okay, what should be on my background, because what the other person is seeing, he is not even seeing me, he or she is also seeing what is in my background. ये मेरा एक प्रॉब्लम था कि बैकग्राउंड पहले कुछ कहीं कैसा भी होता था, आई यूज्ड टू शूट। अभी भी इम्प्रूव कर रही हूँ, अभी भी थोड़ा सा हो जाती हूँ कि कभी कहीं पे भी कर लेती हूँ, पर फिर भी पहले से बेटर है। नॉइज, अर्लियर आई यूज्ड टू लिव इन अ प्लेस, जस्ट 15 days बैक, पिछले 6 साल से मैं ऐसी जगह रह रही थी कि मेरा घर रोड पर था और वहां इतना ट्रैफिक आता था, रेड लाइट थी वहीं टी पॉइंट पर, और इतना नॉइज आता था कि मेरी वीडियोस में नॉइज की इतनी प्रॉब्लम थी। स्टिल उस घर में रहते हुए मेरी वीडियोस, कई सारी वीडियोस है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड, मिलियंस ऑफ व्यूज वीडियोस में आए हैं उस घर की वीडियोस में, बिना माइक के भी। तो ये भी एक चैलेंजेस ऑफ कोर्स। सी, आप बहुत सारे लोग जो मेरी जो क्लासेस में भी होते हैं, वो लोग कहते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, शोर बहुत होता है। मैं उन्हें कहती हूँ आप वहां आके देखो जहां मैं रहती हूँ, जहां पहले रह रही थी, वहां रहती हूँ, वहां का तो शोर आप मैच ही नहीं कर सकते। तो आपको कुछ ना कुछ हैक लगाना पड़ता है, आपको दरवाजे बंद करने होते हैं, आपको दरवाजों के नीचे डोरमैट लगाना होता है कि नॉइज आप ब्लॉक कर सको। या बाद में मैंने बोया माइक भी ले लिया था, मैं हेडफोन यूज कर रही हूँ अभी फिलहाल के लिए। या आपको कुछ ना कुछ देखना होता है कि हाउ, इन विच कॉर्नर, व्हाट टाइमिंग। सपोज पूरे दिन आपके आसपास शोर होता है, आप नहीं कर सकते, तो क्या ऐसा हो सकता है कि फॉर मेकिंग अ वीडियो पर्पस, मेकिंग अ वीडियो, आप सुबह थोड़ा जल्दी का टाइम कर सको या रात का टाइम जब सब सो चुके हो, क्या कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो ये नॉइज का एक मेजर प्रॉब्लम लोगों को होता है। लाइव वीडियोस के साथ जैसे आप लोगों की प्रॉब्लम्स रही, लाइव वीडियोस में डर, किसी ने कुछ पूछ लिया, लाइव वीडियोस कई बार वर्टिकल, कुछ ना कुछ सी, बी प्रिपेयर टू मेक थिंग्स मेसी। लाइटिंग एंड एम्बियंस के लिए किसी ने आप में मुझसे पूछा था कि कब वीडियो बनाए बेस्ट है, तो बेस्ट वीडियो तभी होती है या तो सूरज उगने का टाइम होता है या शाम का। इंस्टा रेडी, इंस्टा टाइप की जो वीडियोस होती है ना, या फोटोज होती हैं, पिक्स, उसका बेस्ट टाइम
तो होता है मॉर्निंग का या इवनिंग का। दिन में जब तेज धूप होती है या हार्श लाइट्स होती है, उसके अंदर इट्स नॉट सच अ गुड आइडिया टू मेक वीडियोस। और यदि है तो फिर आपको इक्विपमेंट चाहिए होंगे, चाहे ब्लॉकिंग के लिए है, लाइट ब्लॉकिंग है, या फिर फिल्टर्स हैं, आपको वो सब चाहिए होंगे, या शेड चाहिए होगा। फिर नेक्स्ट चीज जो आप लोग माई एंड फायर शीट के अंदर करेंगे कि आपके फेवरेट स्पीकर्स कौन है, प्रेजेंटर्स कौन से। तो योर फेवरेट, दैट टाइम आई हैड दीज, आई वाज वाचिंग दीज वीडियोस, or perhaps I opened them and checked them how good they were doing. So what I understood, why favorite? So basically what I understood from here, reading it, what I understood, people connect with you when you are being natural with them. These were my observations. Same way you can create your observations, you can create your my and why sheet. If you keep writing your journey, then it will help you polish it further and help gain data from it, extract data कि अच्छा मुझे ये दिक्कत थी, इसको मैं कैसे कैसे मैंने इम्प्रूव किया और कैसे फर्दर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये एक तरीका हो सकता है। तो 3 V's जो है आपके वीडियो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, वीडियो का इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, दैट इज लाइक you can notice little kids when they want anything or some toy or something, they try every tactic to make other people believe that that kids wish must be fulfilled. वो कभी रोएगा, कभी प्लीज मम्मा प्लीज पापा दे दो, और आप तो बुरे पापा हो रहे हो, आप तो बुरी मम्मा हो रहे हो, देखो उसको मिल गया, मेरी क्लास में सबके पास है, आप नहीं दिला रहे हो, आप कंजूस। कंजूस जैसे बच्चे आजकल वर्ड नहीं बोलते, लेकिन हाँ मेरी क्लास में सबके पास है, ये एक कॉमन मैनिपुलेटिव टेक्निक है उनका। तो बच्चे किस किस तरीके से, वो सिर्फ बोलते नहीं है, वो एक्सप्रेशन भी देते हैं, वो पूरा पूरा जोर लगा देते हैं, रोना धोना गाना, हर अच्छा जिस तरीके से पुचकारना, हर तरीके से। तो विजुअल्स के अंदर हम 3 V's में आपके शब्दों को, आपके वर्बल्स को सबसे पहले नहीं ले रहे। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन वर्बल, व्हाट यू आर सेइंग, दैट विल कम मच लेटर, व्हाट योर बॉडी इज सेइंग, are your expression, what are your expressions, are you open? When I open my palms, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द प्रेजेंटर्स जो है या orators हैं, they keep their hands like this, authority position, or show their palm. When they show their palm, it means nothing is hidden, they are open to open to the audience, and that's one of the body language, how people receive them well. That यदि आप ऐसे करके बैठ जाओ और then I deliver the entire session to you, then it will be like perhaps I'm being defensive, perhaps I don't mean what I say, yes or no? But when I open my hands and I convey, somehow, even if you may not be aware, but somehow it gives a message to your brain that yes, this is something coming from the heart, or this is something honest we can believe. And marketers use this tactic to make you believe what they want to sell. And you are also being a part of video marketing. When you have to put energy into visuals with your body language, face expression, initially we are stiff, initially because there are many issues, many filters going on in our head. तो ऐसे लगता है कि उतना ओपन अप नहीं हो पाते। जब उतना ओपन अप नहीं हो पाते तो ऑफ कोर्स इतना हम दे भी नहीं पाते, एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, और एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो एनर्जी भी कहीं ना कहीं हमारी तभी रह जाती है। और एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन, ये सब का ये मतलब नहीं कि हम चिल्ला चिल्ला के बोले, बहुत लाउड हो जाए या कुछ। हमको जो मैसेज कन्वे करने चाह रहे हैं, जिसको कन्वे करना चाह रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड, उसको समझते हुए करना होता है। आपके आसपास क्या है और आपके
विजुअल्स क्या है? विजुअल्स के अंदर आपकी जो ड्रेस आप क्या पहन रहे हो, जैसे आप योगा कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आप ओम वाला टी शर्ट पहन रहे हो, दैट इज मेकिंग मोर इम्पैक्ट। यही आप कोई अलग तरीके का शर्ट वगैरह पहन रहे होते हैं अलग हर दिन, एक तो ये टेंशन कि क्या पहने, और दूसरे मे बी योर मैसेज इज नॉट गोइंग अक्रॉस। तो अभी क्या किसी को फील ये हो रहा है कि लेकिन इसके लिए तो हर समय कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि हमारे विजुअल्स ठीक हैं, बॉडी लैंग्वेज ठीक है, फेस एक्सप्रेशन ठीक है, ऐसा लग रहा है कभी? डेफिनेटली मेरे साथ तो ये बहुत चैलेंज है। तो इसके लिए ये कर सकते हो, फेक इट टिल यू मेक इट। स्टार्टिंग में 100% हर कोई पहली बार में 100% एक्सपर्ट होगा, ऐसा तो एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए। और हमने तो पहले ही शुरुआत किया, डोंट कंपेयर विद एनीबॉडी, टेक योर ओन जर्नी एज इट one step at a time. So fake it till you make it. Keep yourself in a winning posture when you are sitting straight, even if you are sitting in your own place. आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, यदि आप एक अथॉरिटी की पोजीशन में है, वेदर यू आर वेल सूटेड फूटेड और वेल ड्रेस्ड अप, आपकी ओवरऑल क्या इंप्रेशन आप देना चाहते हो, यू शो इट, ठीक है, यू फेक इट। एंड सडनली ऐसा होगा, धीरे धीरे ऐसा होगा कि वो फिर नेचुरल वे ऑफ लिविंग हो जाएगा आपका। फिर यू विल नॉट नोटिस कि हाँ अच्छा मैंने स्पेशली आई पुट ऑन अ सूट और स्पेशली आई पुट ऑन अ शर्ट और कुछ आपने स्पेशल इफेक्ट किया है, आई पुट अ प्लांटर और बुक शेल्फ, तो बाद में आपको लगेगा हाँ ठीक है ये तो ये पे रहता है, इट्स ओके। सेकेंडली, पीपल लाइक स्माइलिंग पीपल, एंकर्स हैं, प्रेजेंटर्स हैं। आप यदि खुद ही ऐसे दुखी मन मेरे टाइप में देवदास बन करके बैठे रहेंगे, बहुत कि जैसे आप ही दुनिया को छोड़ करके बैठे हुए हो, आप उस तरीके से दुखी दुखी टाइप का, तो सामने वाले हर कोई हैप्पीनेस की ही तलाश में है, चाहे वो कोई भी चीज है, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, वेल्थ में, हाँ कि नहीं? और हैप्पीनेस का, लोगों से कनेक्ट करने का सिंपल जरिया है स्माइल। और जब आप स्माइल करते हो तो हाँ, आपका टॉपिक कुछ ऐसा है कि जो जिसमें सैडनेस होनी चाहिए, देन यू हैव टू बी सैड दैट वे। आप किसी को मरने का समाचार दे रहे हो या कोई दुखी का समाचार दे रहे हो, कुछ समथिंग, कोई वीडियो, एंड देन यू स्माइल, देन इट मे ruin the entire context, but otherwise smile and see where it fits, or otherwise be genuinely happy. क्या तरीका है, कई बार वीडियो भी हम बनाते हैं, कोई ऐसा टॉपिक होता है भारी भरकम होता है, पहली बार कर रहे हैं, लाइव वेबिनार कर रहे हैं, लाइव वीडियो कर रहे हैं, किसी नए प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, तो इट इज बट नेचुरल दैट वी गेट अ लिटिल कॉन्शियस, या दिल में वो ना एक सिंकिंग फीलिंग आ जाती है। उस टाइम द बेस्ट थिंग व्हाट आई अंडरस्टूड कि आप 2 फिंगर आप अपने माथे आज्ञा चक्र पर रखो, अपना जो अंगूठा है राइट नोस्ट्रल पर रखो, एंड डू सम अनुलोम विलोम। आप कुछ सेकेंड्स के लिए ये करोगे, 2-3 सेकेंड्स भी करोगे, तो यू फील दैट एनर्जी फ्लोइंग। दिस इज माय वे। टोनी रॉबिन्स, यू नो, टोनी रॉबिन्स का सिस्टम ये है कि ही डज जंपिंग जैक बिफोर एनी प्रेजेंटेशंस। मोस्टली कई यूट्यूबर्स या बहुत सारे जो जिनका पब्लिक प्रेजेंस होता है या पब्लिक प्रेजेंटेशंस होते हैं, दे आल्सो डू दैट, कि वो उससे पहले कुछ ना कुछ बूस्टअप, अपनी एनर्जी बूस्टअप करते हैं, सो दैट क्योंकि एनर्जी होगी देन वी आर एबल टू गिव एनर्जी बैक इन द यूनिवर्स। हम बाहर तभी कर सकेंगे, अंदर से एनर्जी ब्लॉक होगी तो हम बाहर भी नहीं दे पाएंगे। अगर आप जंपिंग जैक कर सकते हो, वेल एंड गुड। अगर आप किसी और तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हो, गुड। इफ यू कैन टेक वाटर, गुड। यदि आप डीप ब्रीथ कर सकते हो, दैट्स गुड। इफ यू कैन टेक अनुलोम विलोम, that will also increase your energy. And then second is vocal. How's your tone, volume, modulation? इसके अंदर एक दिक्कत क्या हो जाती है, हो सकता है आप लोगों को भी आए, कि जब आप अपने फेवरेट प्रेजेंटर को, एंकर को देखोगे, अब वो तो क्योंकि ऑफ कोर्स वो किसी लेवल पर हैं, वो फेमस हो चुके हैं या वो किसी हाई एंड लेवल पर हैं, तो उनकी टोन, वॉल्यूम, मॉड्यूलेशन बहुत काफी हद तक पॉलिश्ड होगी, हाँ कि नहीं? उस केस में आपको ये डर हो सकता है कि मेरा इसके जैसा नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? ये गलती मैंने भी की थी एक
लेवल पर कि मैंने भी, मेरे जो फेवरेट प्रेजेंटर थे उनको देख के मैंने भी कोशिश की कि मैं वैसा करूं। उससे क्या है, मेरी जो गले की, मेरी वोकल कॉर्ड है, मैं यदि चिल्लाती हूँ तो वो मेरा गला दर्द करने लग जाता है, खराब जैसा सा फील हो जाता है। अगर आपकी हाई पिच है तो ऑफ कोर्स आप हाई पिच यूज कर सकते हो। अगर आपका गला ट्रेन नहीं है, आपकी पिच वैसे ट्रेन नहीं है, वोकल्स उतने ट्रेन नहीं है, देन either you practice some voice modulations, create impact in people's life. इसलिए जरूरी है कि आप अपनी टोन, मैसेज के हिसाब से कितनी आपको वॉल्यूम रखनी है। जैसे योगा में इट मे बी सम काम with poise and with pauses and calmness and all, but motivation में you may require some high energy, right? फिर what you say is very slight, only 7%, but how you say it makes a big difference. So whatever you are saying, you may include your story, your quotes, your relevant topics. You can add them. You can show some energy, your tone, volume, and emotions also. Don't copy anybody else's style. Just observe your way of saying things and see how best you can improve it. Does it make sense? Yeah, डिम्पल जी, इसका एक एग्जांपल अगर कभी हो सके दीजिएगा. What you say, because it sounds simple, but I think it has got a deeper meaning. कि what you say and how you say it. ये गुरुदेव भी बोलते थे, but इसका एग्जांपल हो सके तो दीजिए. Do you notice गुरुदेव का ही काफी videos, the topic, title, and sometimes even the thumbnail, he has copied them from some of the top videos or the best trending videos. Did you notice that? Even on YouTube और social media, it is said कि अगर आप YouTube खोलोगे ना तो आप देखोगे कि एक टॉपिक है और उस एक टॉपिक के ऊपर 10 लोगों ने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है. Even if there may be one topic, if Ashish is talking about yoga, of course he is talking about yoga, and there are सदगुरु हैं और श्री हैं और जाने कितने लोग हैं, इतने हजारों बड़े, मतलब इतने बिग विग्स हैं, they are talking about yoga. What they are saying is also yoga. Ashish is talking all about yoga. So how you say it, like अभी आप योगा को ही ले रहे हो, लेकिन उसके अंदर आशीष is giving his own life story, his own experience or his own journey, how he done it, how he is helping others, how people in his contact are facing results or difficulty, and there itself सिर्फ इन्हीं चीजों को, कंटेंट को ही नहीं मिक्स कर रहे, वो कितना पॉज ले रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, लोगों के रिस्पॉन्स को कैसे की. क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? डू यू एग्री? डज इट मेक सेंस? यस और नो? सो वो कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ किस किस लेवल पर, वो किस तरीके से, उनका जो पर्सनलाइज्ड फ्लेवर है, ठीक है, उनका जो पर्सनलाइज्ड फ्लेवर है, हाउ ही टॉक्स टू पीपल और हाउ ही इंटरेक्ट्स विद पीपल, वो उसको कितना ऐड कर रहे हैं, उनके इमोशंस को. मे बी ही इज मोर इमोशनल पर्सन, ही इज नॉट मोर एन एम्बिशियस पर्सन, फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो आप अपनी एनर्जी, अब जैसे मुझे कोई कहे कि मैं मतलब जंप कर करके या कूद कूद के या एनर्जी बोल करके मतलब मैं सेशन करूं, तो आई एम नॉट, टोटली नॉट दैट पर्सन. इफ आई डू दैट, आई विल बी अ फेक. एंड जब मैं खुद को फील होने लगता है ना मैं फेक हूं, तो फिर हम वो डिलीवर भी नहीं कर पाते उस तरीके से. समझ रहे हो? यस. सो वसंत, हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड आपका कैसे, अपना कैसे आप फ्लेवर लेके आओगे अपने मैसेज में, कैसे आप करोगे. बेशक से आप कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक लेने का फायदा ये होता है, जैसे आपको वीडियो बनानी है, इफ यू पिक अप अ ट्रेंडिंग टॉपिक, सपोज हाउ टू बी हैप्पी व्हेन यू हैव एवरीथिंग इन लाइफ, हाउ नॉट टू बी मिजरेबल व्हेन यू हैव एवरीथिंग इन लाइफ, ठीक है. अब आप, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपने टॉपिक ले लिया सेम,
इसके ऊपर 20 लोगों ने और वीडियो बनाई हुई है। अब आप कहोगे कि 20 लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, इसी सेम टॉपिक पर बोलूंगा तो कौन देखेगा? लेकिन लोग देखेंगे अगर उसके अंदर आप उसको अपने तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। उसी बोल आप वही रहे हो जो सब लोग बोल रहे हैं, बोलोगे आप बेशक से वही, आपने जस्ट उस वर्ड्स को चेंज कर दिया। शायद बाकी वीडियोस में वर्ड्स थोड़े मुश्किल मुश्किल यूज किए, आपने उनको सुपर सिंपल बना दिया। मे बी यू चेंज द वर्ड्स विच आर यूज इन कॉमन डे टू डे लैंग्वेज, ठीक है। मे बी आपने अपने बचपन की स्टोरी या अपनी वाइफ की स्टोरी इस तरीके से बता दी उसके अंदर कि लोगों ने ज्यादा अच्छे से रिलेट की कि हाँ दिस मेक सेंस, रादर देन मैं रैंडम बात करूं। मैं आपको ये बोलूं कि हाँ मेरी बेटी एग्जाम देने जा रही थी, उसको इतनी टेंशन हुई और उसने देखा एग्जाम सेंटर में 2 लड़कियां एग्जैक्टली बेहोश हो गई थी नीट का पेपर दे करके। इतनी स्ट्रेस थी, उन्होंने 2 साल से प्रैक्टिस कर रही थी, तैयारी कर रही थी, और वो वहां पर बेहोश हो गई। उनको लिटरली उनके पेरेंट्स को बुलाना पड़ा और उनको ले जाना पड़ा। तो अब आप ये शॉकर यदि आप डालोगे अपनी सेम मैसेज में, तो व्हेन यू हैव एवरीथिंग इन लाइफ, हाउ टू बी हैप्पी एंड नॉट टू बी मिजरेबल व्हेन यू हैव एवरीथिंग, लाइक दोस नीट का पेपर दे रही है, दे आर एफ्लुएंट फैमिली से है लड़कियां, फिर भी वो बेहोश हो रही हैं, तो हाउ नॉट टू बी मिजरेबल, है ना? मेक सेंस? no, मैं समझ रहा हूँ मे बी कंटेंट वाले पार्ट में आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे ठीक आपने है, बोला अपना फ्लेवर डाले, मीन्स लाइक हमें ये समझना है कि भाई हम क्या है। अपना फ्लेवर बोले तो you have your own personality, you have your own style. So I have यस like my own personality, Ashish ji, guys they have their own personality and style. यस तो वो आइडेंटिफाई करना है। थोड़ा सा मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ HTC से भी कि whether what stone we are, whether emerald or whether ruby, किस आपको क्या ट्रिगर करता है। मतलब जैसे मैं कोई जैसे कोई पेनफुल चीज है जो जो सोसाइटी की बड़ी टेंशन वाली चीज है, उसको मैं फन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं एक्सप्रेस करना पसंद करूंगा। मतलब कि इतनी बड़ी चीज भी नहीं है भैया, ठीक है। तो probably that could be my style as an example, but मैं वो सोच रहा हूँ कि क्या वो रिलेट करेगा, क्योंकि ये तो ऐसा तो नहीं कोई संगीन जुर्म हो जाएगा कि when it's a very intense kind of a thing and you are taking it very lightly and expressing it. I was just thinking that also कि आपने उसको हल्के में ही बता दिया कि अरे कुछ भी नहीं है यार। जैसे होता है ना, हम दोस्त लोग क्या बोलते हैं, कोई कोई बंदे जैसे एग्जाम के लिए गए, फिजिक्स के एग्जाम के लिए गए, एक बंदा बड़ा टेंशन में है, तो बोलता अरे यार क्या है इसमें है। तो it may sound, it should not sound very this thing कि अरे ये तो सोसाइटी की इतनी बड़ी पेन है, but you are trying to express it very lightly. मैं उस एंगल में भी सोच रहा था, but yes you are right in saying that आपका जो ओरिजिनल फ्लेवर है, आप जिस आपकी जो आप जो पर्सनैलिटी अपनी समझते हैं, वो तो बाहर आनी ही चाहिए। दैट इज द पंच पॉइंट फॉर यू। मतलब ये मैं सोच रहा था, आपके पॉइंट से लीडिंग थॉट से सोच रहा था मैं ऐसे। I hope you are correct. And here I tell you one more point. Today, if you try to create a company like Apple or Google or Amazon or Reliance or Tata, what are your chances of success? And how much investment you'll be needing? How much time you'll be needing? How much energy you'll be needing? Yes or no? right. But- chances of success will be zero at this but- point in time. Yeah. The world does not want duplicates. It wants original. Okay? Here when you said कि मैं ऐसा बोलूंगा, वो कहेगा अरे ये तो दुनिया की इतनी प्रॉब्लम है, तुम तो इतनी लाइटली ले रहे हो। Okay, 90% people think this is a big problem, or 99% people think it's a big problem. I differ, and that's where my leadership skills come. That's where I stand to my ground. Even I have made many breakthroughs. मेरी इंडस्ट्री में ही, जो स्टिचिंग की इंडस्ट्री में मैंने ब्रेक थ्रू किया, उसमें मैनी फर्स्ट कई चीजें मैंने देखी कि नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, ओके लेट्स मी डू इट। बहुत सारी चीजें, इवन व्हाट आई एम डूइंग टुडे, बहुत सारी चीजें नहीं हो रही। व्हाई कांट यू बी ओरिजिनल? दुनिया को दूसरा शेक्सपियर नहीं चाहिए, दूसरा महात्मा गांधी नहीं चाहिए। क्या करेंगे वो? महात्मा गांधी का आजादी मिल चुकी है,
ठीक है, अभी उनको दूसरा नेपोलियन हिल नहीं चाहिए, उनको ओरिजिनल चाहिए, दूसरा फेसबुक नहीं चाहिए उनको. कैन यू बी ओरिजिनल? सो अगर आप 99 के साथ एग्री नहीं करते, अब एलन मस्क 99 के साथ एग्री नहीं करता, वो कहता है ठीक है, उसको जो बोलना है वो बोलता है, उसको लाइक ही इज ओके विद दैट. तो if he differs, so people are, he is getting more attention, people here are giving him more attention because he differs. Yes or no? Right. So maybe that could be your unique selling proposition or USP. That could be, and that is the true trait of a leader, that you dare to differ and you dare to stand on your ground. कि हाँ मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, और मैं इसको दिखा सकता हूँ कि हाँ ऐसा होता है. I have a valid point and I can show you how. The second point is also the same, कि when and where you take or add natural pauses, what is the right tone of your message, so कहाँ कैसे आपको deliver करना है. So these are 3 V's: विजुअल, वोकल, वर्बल. इसमें वर्बल का रोल बहुत कम होता है, वोकल का मीडियम होता है, और विजुअल्स यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशंस, आप ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है, वी ऑल आर पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स. जो हमारी एनर्जी है दैट गेट्स टू द अदर पर्सन, जो कि बिना बोले जो सामने वाले को कन्वे होती है. लोअर रेट ऑफ स्पीच is best to avoid fumbling or getting nervous or forgetting words. Sometimes while I was teaching yoga also, like teacher training में भी वो teaching में भी वो सिखाते हैं कि while you are teaching yoga or teaching anything or giving a solution, take pauses, slow down, don't rush. Same way, if you also take pauses, stress on certain words, emphasize on certain words, and let other people also express or show some gestures, so accordingly you can slow down, so your mind can process your message and take the right vocabulary, right words, and you'll be able to express your message better. Will it make sense, Vikas? अगर आप जल्दी अपना मैसेज जल्दी देने की बजाय थोड़ा सा रुक करके मैसेज को डिलीवर करो. I have one successful test for you, and here what you have to do: record at least 1 or 2 minutes of video clip, play the video, and here focus on the visuals only. How you are looking, how your surroundings are, what are your face expressions, what is your body language. Just look at your visuals. You guys have already made some videos. What you can do, you can go to your earlier videos also and see the visuals only. Mute the video and see the visuals, or make a fresh video as you like. Now, the next step is replay the video. This time, focus on the vocals only. What is the pitch? What is the volume? How the message is conveyed. Okay. And third time, focus on the verbal. What words you are using and exact message that is being conveyed. Then I started noticing what is going right, what can be improved. Some people say, how many of you watch your own videos? Earlier videos? You watch your own videos? No? Yes? Watched once or twice. Not, once or twice at the time of editing? Yeah, not from this angle, the pointers, but generally watched it like that. Okay. Not but focusing now, on the visuals, vocals, and verbals. Never focused on that. Here, while you record this, like you notice this, you start noticing, and do it a couple of times at least, till the time you start being aware. Whatever video you watch from this angle, even if it is not your own video. Be aware what is going right, what can be improved. So maybe unknowingly we'll be in a path to improve
next video would be better, and then better, then better. Okay, camera confidence. Some of the questions that I receive, all of you are good looking, of course, so this is not a problem with you, and you have been making videos, so irrelevant here, but still, because it is one of the point in case inside your corner of your heart. So if whatever looks you have, accept how you look, because you can't change the looks, but you can improve how you present yourself, so you can focus more on your talent and knowledge, right? So howsoever you look and howsoever you feel that मैं तो इतना सुंदर नहीं हूँ, मुझे कौन देखेगा, I'm not looking that good, तो keep that out of the mind. बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रेजेंटर्स हैं, ऐसे सेलिब्रिटीज और हीरोज हैं. So looks may be secondary, accept that. See how well you can present your knowledge and yourself. Second, कमेंट्स आते हैं आपके वीडियोस में? कोई नेगेटिव कमेंट आया? नो? देखिए, जब आप वीडियोस बनाते हैं, यू आर इन द जर्नी ऑफ मेकिंग वीडियोस, यू गेट सम नेगेटिव कमेंट्स आल्सो. पॉजिटिव भी बहुत होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और नेगेटिव आते हैं तो फिर मन में कहीं आता है कि जैसे मुझे भी शुरुआत में आते थे, अभी भी कभी कभार एक आध आ जाते हैं, कुछ नहीं आता, ऐसे कुछ भी बोलते रहते हो, आपको क्या आता है, you don't know anything, like it could be anything, it could be irrelevant. Stop your channel, you should stop this channel, not worthy of making videos. These things may come. So people will say, people who have nothing to say, they will say something. Don't be bothered. If there is something good, well and good, like it and give a heart. If it is negative, see उस नेगेटिव वाले में भी कुछ पॉजिटिव फीडबैक है क्या, क्या कुछ ऐसा है जिसको देख करके, जिसको करके आपका चैनल इंप्रूव हो सकता है, वेल एंड गुड. नहीं हो सकता तो आप उसको इग्नोर मार दो. इसका एक और जो अच्छा तरीका है, अगर उसका कोई नेगेटिव कमेंट है कि आपका चैनल तो बकवास है, इसके अंदर ये बात नहीं बोली गई, या आपने तो ये बताया ही नहीं, ठीक है, तो इस केस के अंदर आप अपनी ही किसी वीडियो पर उसको लिंक दे सकते हो और आप उसको भेज सकते हो, ताकि वो आपकी दूसरी वीडियो देखे. मे बी दैट पर्सन में चेंज द ओपिनियन, और दैट पर्सन विल ऑल्सो गेट टू योर कॉन्टेंट, तो वो आपके सर्कल में आने के उसके चांसेस हो जाएंगे. और फिर आपका कमेंट जो पढ़ते हैं लोग, वो सिर्फ वो नहीं होता जिसने कमेंट लिखा है, बाकी जो बाद में जो व्यूअर्स होते हैं ना, जनरली पीपल हैव द टेंडेंसी टू चेक द कमेंट्स, कि कमेंट्स में आपकी रियल पर्सनालिटी का पता चलता है कि आप रियल पर्सन कैसे हो. अगर आपने नेगेटिव कमेंट का आंसर नेगेटिव ही दिया है, तो फिर लोगों को पता चलता है कि ये ऐसे ही बंदा है, नेगेटिव ही पर्सन है. लेकिन आप यदि उसको रीडायरेक्ट कर सकते हो किसी तरीके से, या पॉजिटिव कुछ फीडबैक दे सकते हो, देन इट रिइंफोर्सेस पीपल्स फेथ एंड कॉन्फिडेंस ऑन यू. इस तरीके से मैंने देखा, क्योंकि मुझे बहुत जब नेगेटिव कमेंट कभी आए तो मैंने उनको पॉजिटिवली ऐसे हैंडल किया, या उनको अपनी किसी वीडियोस पर रीडायरेक्ट कर दिया. तो उससे बाकी लोग जो बाद में आए, उन्होंने कहा कि ऐसे तो कभी कोई बोलता ही नहीं, किसी ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं, और ये मेरा ही पर्सपेक्टिव है. जनरली मैंने नोटिस किया है कि ऐसा पर्सपेक्टिव किसी और का होता नहीं यूट्यूबर का. जनरली लोग, सेलिब्रिटी कोई भी होगा, वो कहेगा नेगेटिव्स को इग्नोर मारो, हाँ कि नहीं, इग्नोर मारो, ट्रोल्स का जवाब मत दो. लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये है, अगर उसमें कुछ पॉजिटिव है, पिक दैट, इम्प्रूव अपॉन दैट. अगर कुछ नेगेटिव है, अपने ही किसी वीडियो को दे सकते हो, दो उसे, गिव, यू हैव. अब जब दुनिया को सुधारने का बीड़ा उठा ही लिया है, तो गो फुल ऑन, ठीक है. तो अब नेक्स्ट आपको रिकॉर्ड करो, प्रैक्टिस करो, सक्सेसफुल जो टेस्ट है इसका. Once I go through it, I'll reach out to you. Yes. Okay then, all the best. Thanks. Yeah. Take care. Keep growing. Keep rocking. Yeah, thanks. Take care. Bye.